guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And in this particular video, we will see how we can master Django ORM because Django is one of the top frameworks in Python world. And ORM is like something you don't write raw SQL queries in Django. And what we do is we use ORM, and basically ORM stands for object relational mapper, and this one is very important topic in perspective of becoming a great Django developer. And as a part of an interview, this is one of the most hot topics, and a lot of questions directly comes into the picture when interviewer asks you about ORM. They can give you a model, and in that particular model you need to fetch those particular things and from the database, and they can ask about relationship, what relationship you will build. And Django ORM is pretty much very powerful in terms of making queries, because it's very easy to make queries in using Django ORM, which in RowSQL you have to do a lot of efforts. For RowSQL you need to make a lot of efforts, but with the help of Django ORM you are it's really easy for you. Okay. And we will see also how we can optimize our queries with the help of Django ORM, select related and prefetch related, and what are those. This will be a complete crash course. And one more very important thing which I want to tell you: if you like the video, if you like the content, please do subscribe the channel, and please share this video to all your peoples, all your friends. And let's start the video. And I have a very important information for you. Newton School e-learning course has are going to start from January. So we will talk about this later on, what's Newton School. And trust me, once you will know what's Newton School, you will feel amazed. So that we will discuss in a later part, but let's start with the Django ORM. So basically what I have done is, this is a Django documentation. We will see something from here also. Okay. So what I have done is I have created a it's a normal application or Django app. In this particular app, what we have done is I have created some models, and in those particular model I have added some fields. Okay. So मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि what I have done till now is, so first of all, Django के अंदर एक Django जो फ्रेमवर्क है इज अ पाइथन फ्रेमवर्क. ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है. पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो सपोज व्हाट वी हैव टू डू, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास कोई क्लास है, तो मैं उस क्लास को एज अ इनहेरिटेंस यूज कर सकता हूँ. उस क्लास को और सारी क्लासेस में यूज कर सकता हूँ. उसको एज अ बेस क्लास यूज कर सकता हूँ, एंड उसके मेथड्स, उसके वेरिएबल्स एंड उसके फंक्शंस को मैं दूसरी क्लास में पास कर सकता हूँ. बेसिकली इनहेरिटेंस पॉसिबल है पाइथन में. ठीक है. देन इट्स ऑल्सो पॉसिबल इन Django. So what I have done is, suppose that I have to add these fields UUID and created at in all those this model, this model, and this model. So what I have done, I have created a base model from inheriting from models.model, and I have added class meta_true. meta_true का मतलब ये होता है, अब क्लास मेटा एक स्केलेटन क्लास होती है, एक इनर क्लास होती है Django के मॉडल के अंदर. इसमें आप कुछ सेट ऑफ फील्ड्स पास कर सकते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, प्रॉक्सी मॉडल है कि नहीं है. ठीक है. एंड क्लास का वर्बोज नेम क्या है, क्लास का प्लूरल नेम क्या है, मतलब क्लास के बिहेवियर को आप ओवरऑल डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है. तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट ट्रू यहाँ पे इसलिए किया हुआ है. अगर आप एब्स्ट्रैक्ट ट्रू कर देते हो तो इसका मतलब ये क्लास जो है बेस क्लास की तरह ट्रीट होगी, इसका कोई मॉडल नहीं बनेगा. इन टर्म्स ऑफ इजी टर्म्स में अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन लिखते हो एंड पाइथन manage.py मेक माइग्रेट लिखते हो, तब ये वाला मॉडल तो बन जाएगा. एक डेटाबेस में एक टेबल आपकी बन जाएगी कलर्स नाम से, एंड उसके अंदर एक फील्ड होगी कलर कोड का नाम से. ऐसे ही पीपल नाम से बनेंगी, एंड उसके अंदर नेम, अबाउट, एज, ईमेल एड्रेस और कलर्स होंगे. ठीक है. लेकिन जब आप एब्स्ट्रैक्ट ट्रू कर देते हो तो इसका कोई भी मॉडल नहीं बनता एंड कोई भी माइग्रेशन में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये इसको जो Django का मॉडल है इसको एज अ क्लास ट्रीट करता है. अब इस पर्टिकुलर क्लास को आप इन किसी भी मॉडल में पास करोगे, एंड इसके अंदर जो भी सेट ऑफ फील्ड्स थी, जो भी मेथड्स थे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे. सपोज दैट मैंने UID एंड क्रिएटेड एड यहाँ पे पास किया हुआ है,
तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे Django ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, मतलब एक UUID फील्ड यहाँ पे ऐड कर देगा एंड क्रिएटेड ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जैसे क्लास होता है उस तरीके का बिहेवियर इसका बन जाएगा, बस अब्स्ट्रैक्ट ट्रू पास करने से, ठीक है। अब UUID फील्ड मैंने क्यों यहाँ पे यूज करी है इसको भी मैं बता देता हूँ। UUID फील्ड मैंने इस वजह से यूज करी है बिकॉज लेट्स अगेन चेक लाइक वॉइस इज रिकॉर्डिंग, यस वॉइस इज रिकॉर्डिंग। सो UUID फील्ड का मतलब क्या होता है, लाइक जो नॉर्मल अगर हमारी SQL होती है उसमें 1 2 3 4 से प्राइमरी की हमारी स्टार्ट होती है, बट व्हाट द प्रॉब्लम इज लाइक सपोज दैट इफ आई एम ऐड सेम की कलर्स एंड पीपल, सो कलर्स का भी जो होगा वो 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा एंड पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। व्हाट आई नीड टू मेक अ डिफरेंशिएशन बिटवीन कलर्स एंड पीपल मॉडल, लाइक वहां पे 1 2 3 4 की जगह पे मैं कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग यूज करना चाहता हूँ जो कि ना तो इसमें कॉमन मिले, जो कि ना को इसमें कॉमन मिले, उसके UUID यूज करता हूँ। एंड UUID इज लाइक एक सेट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है एंड ये पूरी वर्ल्ड वाइड यूनिक होती है। यहाँ पे आपको दोबारा एक UUID नहीं मिलेगी, इसमें टाइम स्टैम्प एंड बहुत सारी कैलकुलेशन यूज करके इसको बनाया जाता है। सो आई एम यूजिंग UUID इंस्टेड ऑफ प्राइमरी, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल हमारा 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड 3 मॉडल्स। फर्स्ट वन इज कलर्स मॉडल इन विच वी हैव कलर कोड फील्ड एंड आई हैव मेड अ पीपल मॉडल इन विच वी हैव 5 fields like name, about, age, email address and color, ठीक है। and all these are like text, integer and email field, and we have one many-to-many relationship with color, okay। and I have a people address in which like we have added people, foreign key and this kind of thing, okay। so let's come to the फॉरेन की रिलेशनशिप फर्स्ट। सबसे पहले फॉरेन की रिलेशनशिप में हमें यहाँ पे 3 चीजें मिलती हैं पास करने को। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड, मॉडल्स डॉट कैस्केड मिलता है, मॉडल डॉट सेट अंडरस्कोर नल मिलता है एंड मॉडल्स डॉट डिलीट करता है, मॉडल्स डॉट सेट डिफॉल्ट मिलता है, सॉरी, ठीक है। तो इन चीजों में डिफरेंस क्या होता है, लाइक जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल्स डॉट कैस्केड, तो सपोज दैट ये मॉडल जो है ये पीपल है, एक पीपल बना था एक अभिजीत नाम सा, एक अभिजीत नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें अभिजीत लिखा था एंड अभिजीत अबाउट में एजुकेटर था, एज में उसकी 23 लिखा हुआ था एंड ईमेल एड्रेस abhijit@newtonschool.com एंड कलर्स उसको रेड ब्लू ग्रीन पसंद है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट, उसके 3 एड्रेस हैं, लाइक वो एक इंडिया में रहता है और एक दिल्ली, इंडिया में कुछ लाइक सिटीज में रहता है, लाइक से दिल्ली में भी रहता है, बैंगलोर में भी रहता है, लखनऊ में भी रहता है एंड कर्नाटक और कहीं पे भी रहता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी फील्ड थी, अब मैंने अभिजीत वाले मॉडल को डिलीट कर दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल्स डॉट कैस्केड। इसका मतलब ये हो गया, तो इसके जो 3 मॉडल थे, लाइक अभिजीत का एक मॉडल यहाँ पे बना हुआ था, मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ अभिजीत, एंड इसके अंदर 3 और बने थे, 3 बने हुए थे। एक जो था वो क्या था, दिल्ली था, और दूसरा जो था वो हमारा लाइक कह सकते हैं लखनऊ था, एंड तीसरा जो हमारा था हो सकता है, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं स्टेट का, लाइक इंदौर था, ठीक है, इंदौर, ओके। ये 3 सिटीज थे, इसके ये एड्रेसेस बने थे। अब मैं ऑन मॉडल्स डॉट कैस्केड का मतलब होता है अगर ये अभिजीत को मैं डिलीट करता हूँ, मतलब अगर पेरेंट वाला डेटा डिलीट होता है तो ऑटोमेटिकली ये वाले डेटा डिलीट हो जाएंगे, ठीक। मॉडल्स डॉट कैस्केड का मतलब ये होता है, ठीक। मॉडल्स डॉट सेट डिफॉल्ट का मतलब ये होता है अगर ये अभिजीत वाला डिलीट होता है तो ये दिल्ली, लखनऊ और इंदौर इन सब जगह पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट में पास करना पड़ेगा। डिफॉल्ट में मैं यहाँ पे 1 पास कर देता हूँ तो यहाँ पे 1 पास हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे नल पास करना, मैं नल पास कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अननोन पास करना चाहता हूँ कि अगर ये अभिजीत डिलीट होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अननोन आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे एक होता है कि सेट नल, मतलब अगर पेरेंट वाला डिलीट होगा तो ये जहां पे भी अभिजीत था, लाइक इनकी जो भी फॉरेन की रिलेशनशिप थी वहां पे ये ऑटोमेटिकली नल को सेट कर देगा। तो आई होप लाइक अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम आते हैं बात में रिलेटेड नेम पे। रिलेटेड नेम का जो केस होता है वो क्या होता है, लाइक सपोज दैट अभी मैं Django ORM में जब आगे बताऊंगा तब आपको रिलेटेड नेम बताऊंगा अच्छे से, बस आप ये अभी याद रख लो कि रिलेटेड नेम का मतलब होता है रिवर्स रिलेशनशिप ऐड करने में। जब आपको रिवर्स रिलेशनशिप ऐड करनी होती है ना तब आप इन सब चीजों को ऐड करते हो। अब जब आप रिवर्स रिलेशनशिप कर लेते हो तब वहां पे ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा लाइक यहाँ पे आपको एक बार डेटा दिखा देते हैं। मैंने लाइक फेक एक लाइक डेमो सीड करके एक फंक्शन बनाया था एंड इसमें एक क्लास कह सकते हैं बनाई थी जिसमें मैंने कुछ सेट ऑफ लाइक एक फंक्शन बनाया जिससे मैं रैंडम डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके।
ठीक है। तो ये रैंडम डेटा जनरेट करने के लिए मैंने क्लास लिखी थी एंड व्हाट आई हैव डन यू कैन सी लाइक ये कुछ अमाउंट ऑफ बहुत सारा मैंने रैंडम डेटा जनरेट कर लिया लाइक 106 पीपल्स का एंड यू कैन सी पीपल एड्रेसेस भी इसमें बहुत सारे जनरेट हुए होंगे मे बी। ओके मॉडल्स डॉट कैस्केड ठीक है। सो लेट्स अगेन रीलोड दिस पेज and you can see like बहुत सारे addresses भी generate हैं like 1488 okay and colors same as for colors also we have generated some colors also. Now we are going to go in the shell because shell is one of the best place to learn like any CRUD operation and what about all the things ठीक है. So python manage.py shell and let's import our model from home.models import all ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीज़ें आती हैं लाइक अगर कोई भी हम लाइक रॉ एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं देन इन दैट पर्टिकुलर क्वेरी वी ऑल सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट. तो वैसे ही मैं क्या करता हूँ सारे लाइक जब मुझे पीपल्स को लेकर के आना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे नॉर्मली मे बी आप 2x पे वीडियो देख सकते हो दैट विल बी मोर बेटर बट आप स्किप मत करना. स्किप करोगे मैं कोई ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आगे यूज होगी तो डोंट स्किप दिस वीडियो. आप 2x पे देख लो जल्दी जल्दी देख लो वो समझ में आएगा ठीक है. क्या करते हैं ऑब्जेक्ट्स को लेकर के आते हैं people डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल एंड अब क्वेरी को प्रिंट करते हैं फ्रॉम Django डॉट db import कनेक्शन ठीक है एंड कनेक्शन डॉट क्वेरी ठीक है. तो अभी क्या हुआ है अभी हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं ओबीजेस को प्रिंट करते हैं तो आप देख पाओगे ये हमारी क्वेरी प्रिंट हुई है. अब जो भी एसक्यूएल जिसको भी एसक्यूएल का नॉलेज होगा वो जानता होगा क्या लिखा होगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम या फिर सेलेक्ट दिस फ्रॉम पीपल ठीक है. तो इस क्वेरी को हम प्रिंट करते हैं कनेक्शन डॉट क्वेरीज तो आप देख पाओगे सेलेक्ट होम पीपल ठीक है. होम पीपल को सेलेक्ट करो होम पीपल से ये लेकर के आ जाओ यूआईडी होम पीपल क्रिएटेड एट होम पीपल डॉट नेम होम पीपल डॉट अबाउट होम पीपल डॉट एज होम पीपल डॉट ई मेल फ्रॉम ये ठीक है. ये लेकर के आ जाओ लिमिट ऑफ 21 लगा हुआ है. अगर हम पूरा प्रिंट करना चाहें तो वो भी प्रिंट कर सकते हैं. तो ये हमारी बिहाइंड द सीन क्वेरी चली हुई है. अब यहाँ पे आप यू इमेजिन करो कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 21 बुलाया. अब मैं यहाँ पे जा करके अगर लिखता हूँ obj डॉट एंड यहाँ पे अगर मुझको इसका काउंट निकालना हो obj डॉट काउंट करूंगा ठीक. अब मैं फिर से obj को प्रिंट करूंगा तो अब देख पाओगे कि क्या क्वेरी रन करी. जो दूसरी क्वेरी रन करी है सेलेक्ट काउंट ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ सेलेक्ट काउंट एज फ्रॉम होम पीपल तो इसने काउंट बता दिया कि 106 रिकॉर्ड हैं ठीक है. अब हम देखते हैं कि सब यार क्रिएशन तो पता ही होगा ना कि कैसे करते हैं. अगर इतना नॉलेज है Django आप पढ़ रहे हो तो क्रिएशन का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि क्रिएशन इज वेरी इजी. CRUD ऑपरेशन आपको आराम से आता होगा. मैं यहाँ पे सिर्फ ORM को कैसे यूज करके आपको गेट करना होता है वो चीजें सिखाऊंगा और एडवांस जो चीजें होती है लाइक स्टार्ट्स विद एंड ये सारी चीजें सिखाता हूँ ताकि वो थोड़ा इंटरेस्ट बने. अगर मैं CRUD ऑपरेशन सिखाना बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें. ओके एंड इफ यू वांट CRUD ऑपरेशन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट बट नॉट इन दिस वीडियो. ओके सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इज कि हमें पता चल जाता है कि कैसे हम क्वेरी और यहाँ पे आपको टाइम भी दिखा रहा होगा कि इस तरीके से टाइम होता है. अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है लाइक सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है अभी जो मैंने क्या किया है काउंट दिखा रहा है ठीक. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डॉट जीरो ऑफ 106 करता हूँ ठीक. मैंने प्रिंट किया एंड अब मैं ओबीजेस को प्रिंट करता हूँ एक बार फिर से. नाउ व्हाट यू विल सी इज कनेक्शन डॉट क्वेरीज. अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड जो अभी भी इसमें 21 अब दिखा रहा है. आई डोंट नो लाइक बिकॉज जो रिकॉर्ड आए होंगे ये ट्रंकेट करके दिखा रहा है इस वजह से ये दिखा रहा है क्योंकि Django की जो क्वेरीज होती है वो स्लो होती हैं. स्लो क्वेरी का मतलब क्या हो गया जब मैंने people डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल लिखा तब तक कोई क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करेगी. इसमें से एक बार फ्रॉम db डॉट एक सेकेंड फ्रॉम Django.db import reset query from Django.db import reset underscore queries ठीक है reset queries. ओके अब हम यहाँ पे एक बार तो एक एम्प्टी हो गया.
आप क्या करते हैं, लाइक सपोज दैट अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉल, अब मैं फिर से एक बार कनेक्शन डॉट क्वेरीज बोलता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, Django की क्वेरी स्लो है। मतलब जब तक आप इस फंक्शन को, आप ये मत सोचो कि आपने ये लिख दिया people डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि क्या हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी क्वेरी रन करके, जब तक आप इस वेरिएबल को नहीं यूज करोगे, इसको प्रिंट नहीं करोगे, तब तक ये क्वेरी रन ही नहीं करेगी। अब ये जाकर के क्वेरी रन करी होगी, ठीक है। अब मैं अगर इसको दिखाऊं कनेक्शन डॉट क्वेरीज करके तो ये रन होगी। अगर मैं फिर से इस वेरिएबल को प्रिंट करता हूं तो फिर से ये रन करेगी। अगर आप देखोगे तो जाओगे देखोगे तो ये 2 बार क्वेरी रन होगी। इसका मतलब, और इस बार ये कुछ टाइम भी लेगी, कि अब आप जितनी बार प्रिंट करोगे उतनी बार ये टाइम भी लेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, Django की क्वेरी स्लो होती है, मतलब जब तक आप उन वेरिएबल्स को प्रिंट नहीं करोगे जिनमें भी आपने असाइन करा है, तब तक ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करती। मतलब अगर आप एक इमेजिन करके देखो, एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें आप 3-4 बार उस वेरिएबल को यूज कर ले रहे हो, या फिर आप अपनी टेम्पलेट में जाकर के उस वेरिएबल को कई बार यूज कर ले रहे हो, इसका मतलब वो बिहाइंड द सीन क्वेरीज कॉल होती जाएंगी एंड वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आपके सिस्टम को स्लो कर देंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज, एक खेल देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा, अगर मैं यहाँ पे रीसेट क्वेरी अगेन मैं चलाता हूँ, ओके, सो अब हम आते हैं अपने फिल्टर ऑप्शन पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ objs इज इक्वल टू पीपल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ठीक है। नेम में मैं लिखता हूँ यहाँ पे जॉन, ठीक है। तो जॉन में मैं जब यहाँ लिखता हूँ तो हो सकता है कि जॉन से रिलेटेड कुछ लोग हो सकता नहीं है भाई, लेकिन हो सकता है कि कई सारे लोग ऐसे हों जिनके नेम में जॉन आता हो। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ क्वेरी को, मैं दिखाना चाहता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ अंडरस्कोर आई कंटेन्स का मतलब ये होता है कि जिस भी वैल्यू के अंदर जॉन हो, भले वो जॉन आगे हो, जॉन वोकल हो या फिर जॉन डो हो या फिर डो जॉन हो, तो वो सबको लेकर के आ जाएगा। तो हो सकता है इसमें भी नहीं है। अगर मैं जे एच लिखता हूं तो जे एच भी नहीं है, एंड यहाँ पे अगर मैं जे लिखता हूं तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम में जे आता है। अब अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ ऑफ 0 डॉट नेम, तो आप देख पाओगे जॉन वॉटसन है एंड जॉन जिलियन है जिनके में जे आता है। अब मैं फिल्टर करना चाहता हूँ ऐसे लोग जिनके नेम में JON आता हो, ठीक। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ कितने लोग हैं, 1 2 लोग हैं, ठीक है, जिनके नेम में क्या आता है, जॉन। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे 0 ऑफ नेम करता हूँ तो जॉन वॉटसन आ गया, एंड इनके 1 ऑफ करता हूँ तो ये आ गया कैथरीन जोन्स करके, ठीक है। तो ऐसे लोग, मतलब जोन आता है, JON आता है, तो ऐसे लोग ये लेकर के आ गया जिनके अगल बगल जोन आता हो, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, लाइक सपोज दैट मुझको ऐसे लोग को लेकर के आना है जिनके सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में JON आता हो। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टार्ट्स विद करके, स्टार्ट्स विद, सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट्स विद करके लाऊंगा जिसको मैं जॉन को लेकर के आऊंगा। तो ऐसा सिर्फ एक लड़का था जिसका नाम जो है स्टार्ट में JON आता। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ तो मैं उनको भी प्रिंट कर सकता हूँ JON। तो इस तरीके से हम ऐसे लोग को लेकर के आ सकते हैं जिनके नेम में कंटेन करता हो जॉन और जिनके स्टार्टिंग में लेकर आता हो, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐसे लोग लेकर के जिनके एंड्स विद आता हूँ, तो फिर ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे। अभी हम लोगों ने जो लेकर के आए थे जिनका नाम क्या था, कॉलिंस करके था। अगर मैं ऐसे लोग को लेकर के आऊँ जिनके नेम कॉलिंस से एंड होते हों तो ये लेकर के आ जाएगा। ऐसे एक लोग हैं जिनका नाम कोलिन से एंड करता हो, ठीक। अब सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक ऐड करी थी फील्ड क्या, फिर एज, ठीक है। ऐसे स्टार्ट्स विद होता है, आई एग्जैक्ट होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं ईमेल से फाइंड करना चाहूँ तो वो भी आप कर सकते हो बहुत आसानी से, people डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर एंड email अंडरस्कोर आई कंटेन्स इज इक्वल टू, कंटेन्स में क्या हम डाल सकते हैं, Gmail, ठीक है। तो ऐसे कई लोग हैं, या फिर याहू लिख सकते हैं, याहू भी नहीं है, एंड क्या हो सकता है, वाई, ऐसे हैं, मतलब तो इनका क्या है ये चेक करना पड़ेगा, डॉट ईमेल,
मतलब example.com है, ठीक है। तो ऐसे आई कंटेंट्स लेकर के आओ, example.net, ठीक है। तो ऐसे लोग को लेकर के जिनका नाम में एग्जाम्पल आता हो, example.net आता हो, नॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो गए। एंड आई कंटेंट्स है, तो मैं अगर स्टार्ट्स विद लगाऊंगा तो मे भी ये काम ना करे, क्योंकि स्टार्ट्स विद में किसी के में एंड नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा एंड विद काम आ जाएगा, मतलब जिनके भी नाम में या फिर जिनके भी ईमेल में एंड्स विद में ये आता हो तो फिर ये लेकर के, ऐसे इतने सारे लोग हैं जिनके में example.net एंड में आता है, ठीक है। अब सपोज दैट मुझको एक क्वेरी करनी है, ऐसे लोग को अगर मैं चाहूँ यहाँ पे, तो आप अगर चाहो तो ऐसे लोग को फिल्टर करके लाओ जिनकी एज 21 हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एज इज इक्वल टू 21 में पास करूंगा। एंड इतने हमारे पास ये सेट ऑफ लोग हैं, इनका अगर मैं काउंट लगाऊं तो ये इतने लोग हैं हमारे पास में, ठीक है। डॉट काउंट 3 लोग हैं जिनकी एज 21 एग्जैक्ट है। बट मुझे चाहिए कि मैं ऐसे लोग को लेकर के आऊं जिनकी एज 21 से बड़ी हो। अगर मैं यहाँ पे जाऊं 18 लिखता हूं तो 18 पे देखता हूं कि तो 18 पे भी 3 लोग हैं, एंड 20 पे कितने लोग हैं, 20 पे 2 लोग हैं। मतलब ऐसे लोग लेकर के आओ जिनकी एज जो है वो 21 से बड़ी हो। तो एज अंडरस्कोर GTE, दैट मीन्स 98 नंबर ऑफ पीपल्स हु उनकी जो एज है वो दैट्स 21 ग्रेटर, मतलब 21 से बड़ी है। अगर इफ आई वांट टू प्रिंट देम आउट, देन व्हाट आई कैन डू इज इंडेक्स ऑफ 0 डॉट एज, दिस वन गॉट 35, दिस वन गॉट 41। मतलब जो भी पीपल्स आएंगे जिनके एज जो होगी वो दैट विल बी above this one। and what I want to do is, अगर मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनकी एज कम हो तो मैं what I can add LTE means 11, ऐसे 11 लोग हैं जिनकी एज 21 से डाउन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या और चीज हम कर सकते हैं, सपोज दैट कलर है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फॉरेन की पे भी कैसे फिल्टर लगा सकते हो। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे पीपल एड्रेस पे फिल्टर लगाना चाहता हूँ, पीपल एड्रेस इस मैंने प्रिंट किया है ना, ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर किया, और मुझे इनके नेम सपोज दैट ऐसे पीपल का एड्रेस प्रिंट करना है जिनके पीपल के नेम में वो आता हो, जॉन आता हो, जो JON आता हो, ठीक है। तो मैं ऐसे लोग का एड्रेस प्रिंट करना चाहता हूँ जिनके नेम में JON आता हो। तो मैं व्हाट आई कैन डू इज, अगर मुझे कोई फॉरेन की का डेटा एक्सेस करना होता है तो मैं यहाँ पे फॉरेन की वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं डबल अंडरस्कोर यूज करता हूँ, आई कैन यूज डबल अंडरस्कोर। अब जब मैं डबल अंडरस्कोर यूज करता हूँ तो फिर मैं इन सारी फील्ड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम, अबाउट, एज, ईमेल, कलर्स सबको एक्सेस कर सकता हूँ। नाउ आई कैन डू नेम, जिनके नेम में JON आता हो, तो JON वाले कोई पीपल नहीं है। JM यहाँ पे आई कंटेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। आई, क्योंकि एग्जैक्ट हमें नेम नहीं पता है ना, तो आई कंटेंट्स लगाए तो इतने लोग हैं जिनके नेम में क्या फिर आता हो, इतने पीपल एड्रेसेस हैं जितने लोगों के क्या है पीपल नेम में JON आता है, ठीक है। ऐसे ही मैं ईमेल पे लगा सकता हूँ, अगर व्हाट आई वांट टू ईमेल पे लगाना चाहूँ तो फिर एम्प्टी है। अगर यहाँ पे example.net लिखता हूँ, example.net लिखता हूँ PLE, तो यहाँ पे नेट, सॉरी नॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये इतने सारे लोग हैं जिनका, अगर मैं यहाँ पे काउंट लगाता हूँ तो ये इतने सारे लोग हैं जिनके example.net है। अब मैं ऐसे लोग चाहता हूँ जिनके ये हैं example.net बट उनकी एज जो है वो इससे बड़ी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, people अंडरस्कोर एज शुड बी 18, तो मे भी हो सकता है एग्जिस्ट करते हो, 0 एग्जिस्ट करते हैं, बट पीपल की जो एज है दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस वन, तो GTE। तो ऐसे 416 लोग हैं जिनके ईमेल एड्रेसेस में example.net है, बट और उनकी जो एज है वो 18 है। एंड व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पे मैं 20 लिख करके यहाँ पे LTE लगा सकता हूँ। तो ऐसे 4 लोग हैं जिनके जो नेम है जो उनके पीपल के ईमेल है दैट्स उनके ईमेल में example.net आता है, एंड उनकी जो एज है दैट्स 20, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हम ये करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे फॉरेन की रिलेशनशिप बताया कि आप कैसे फॉरेन की से डेटा को बुला सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन यूज रिलेटेड नेम। रिलेटेड नेम से कैसे होता है, सो आई नीड टू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले
अब हम क्या करते हैं, जैसे लाइक सपोज दैट अगर मैंने आपको बताता हूँ, यहाँ पे obj लिखता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ पीपल एड्रेस, एक सेकेंड, इसको कॉपी करते हैं एंड यूज पीपल एड्रेस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फर्स्ट, ठीक है। तो अब मुझको अगर मान लो इस फर्स्ट वाले का प्रिंट करना हो, ठीक है, तो obj डॉट अगर मैं एड्रेस प्रिंट करता हूँ तो क्या आ गया, ये उसका एड्रेस प्रिंट होकर क्या आ गया ना। अब मुझको इस पीपल का डेटा प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, obj डॉट लिखूंगा पीपल डॉट, उसके बाद इस इन सारी फील्ड्स को मैं एक्सेस मिल जाएगा। जब मैं क्वेरी के अंदर करता हूं तो मुझको डबल अंडरस्कोर लिखना पड़ता है, बट जब मुझको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाता है तब मैं यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करता हूँ। डॉट ऑपरेटर क्वेरी के अंदर जब यूज करोगे तो यहाँ पे कोई डॉट नहीं लगाना है। जब आप इस तरीके से यूज करोगे, मतलब ऑब्जेक्ट बुला करके ले आओगे, तब आप डॉट लगाओगे। मतलब जैसे आप टेम्पलेट में नहीं यूज करते हो, इस तरीके से करेंगे। तो obj.people डॉट, अब यहाँ पे अगर मैं नेम प्रिंट करूंगा तो फिर नेम आ जाएगा, अगर मैं उसकी एज प्रिंट करना चाहूंगा तो एज आ जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, आपका सीधा सीधा रिलेशनशिप हो गया। मतलब आपके पास फॉरेन की का डेटा था तो आपने पीपल डॉट नेम कर लिया, पीपल डॉट अबाउट कर लिया, पीपल डॉट एज कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे पीपल, उस पीपल से पीपल का एड्रेस लेकर के आना होगा। मतलब अगर मैं करूं people डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फर्स्ट करता हूं, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे मैं obj लिखता हूं, ओके। सो अब मैं obj प्रिंट करता हूं तो मेरे पास ये आ गया, तो मैं obj डॉट नेम लिखता हूं अगर, ठीक है, तो ये आ गया माइकल, जो भी है नाम उसका, वो आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इससे इस पर्टिकुलर पीपल से इसका पीपल का एड्रेस लेकर के आना चाहता हूं, तो वो मैं नहीं कर सकता हूं अगर, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज क्या किया हुआ, पीपल रिलेटेड नेम यूज किया है। तो रिलेटेड नेम यूज करने से मतलब मैं रिवर्स रिलेशनशिप भी कर सकता हूं। ये तो था डायरेक्ट रिलेशनशिप की आपके पास एक फॉरेन की का डेटा है तो आपने डॉट लगा के एक्सेस कर लिया उस डेटा को। लेकिन जब आपको रिवर्स रिलेशनशिप करना होता है तब आप ये चीजें नहीं कर पाते हो। तो इन चीजों को करने के लिए आपको क्या करना होता है, क्या करना होता है, रिलेटेड नेम का सहारा लेना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, obj डॉट जो भी मैंने रिलेटेड नेम का नाम दिया होगा, तो एड्रेस का नाम दिया था, एड्रेस करूंगा तो देखो आपको इतने सारे चीजें मिल जाएंगी। अगर मैं एड्रेस डॉट ऑल करता हूँ तो मुझे सारे एड्रेस मिल जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर माइकल नाम जो लड़का है उसके जो एड्रेसेस हैं वो इतने सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे काउंट लगाना चाहूं तो मैं काउंट भी लगा सकता हूँ, डॉट काउंट करके, ठीक है। तो यार इसका मतलब क्या हो गया, इसके 4 एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो 4 एड्रेसेस हो गए, इसका मतलब अब मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर पीपल को प्रिंट करना। लाइक सपोज मैं इस पे क्वेरी, सॉरी प्रिंट कह रहा हूं, मैं चाहता हूं इस पे फिल्टर लगाना, तो मैं वो भी लगा सकता हूं। लाइक सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है या फिर मैं यहाँ पे डॉट फर्स्ट लिखता हूं एंड उसका एड्रेस प्रिंट कराता हूं, ठीक है, एड्रेस डॉट एड्रेस प्रिंट कराता हूं, तो ये आ रहा है 18188। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, डॉट फिल्टर and address underscore underscore I contains is equal to 18188। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक लड़का एक है जिसके एड्रेस में 18188 आता हो। अगर मैं यहाँ पे 1 प्रिंट करूँ तो ऐसा हो सकता है, सबके में 1111 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिवर्स रिलेशनशिप भी यहाँ पे कर सकते हो अगर डॉट लगा करके, है ना। एंड अब हम यहाँ पे लाइक इसमें देख सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या क्या चीज़ें और होती हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग डेट वगैरह तो हम लोग फिल्टर करना सीख गए हैं। अभी ये GTE LTE हम लोगों ने देख दिया, स्टार्ट स्विच भी देख चुके हैं। एंड हाँ, अगर हमें कोई स्पेसिफिक वन चीज़ लेकर के आनी होती है तब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लाइक सपोज दैट मैं यहाँ पे करता हूँ पीपल, मैं यहाँ पे गेट लेकर के आता हूँ, पीपल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे इमेजिन करो अगर मैं पीपल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट एज इज इक्वल टू 18 करता हूँ एंड यहाँ पे रिकॉर्ड मेरे पास 18 वाले जिनकी एज 18 है वो बहुत सारे हैं। लाइक सपोज 10-15 एज ऐसे लाइक पीपल्स हैं जिनकी एज है 18 से अबव, तो ये उस केस में एक्सेप्शन रेज करेगा। अब मैं एंटर करता हूँ, इट रिटर्न मोर देन 3, ठीक है। इसका मतलब आप गेट सिर्फ और सिर्फ वहां पे यूज कर सकते हो जब आपको सिंगल रिकॉर्ड फेच करके लाना हो और आपके पास वो सिंगल रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता हो। मतलब अगर वहां पे ऐसा होगा कि 2-3 रिकॉर्ड हैं तो फिर ये एक्सेप्शन रेज कर देगा, गेट रिटर्न 3। अगर आप यहाँ पे फिल्टर लगाओगे तो ये एग्जैक्टली सही काम कर जाएगा।
गेट वहीं पे लगाना है जहां पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ अमाउंट लगे। मतलब अगर मुझे ऐसा लेकर करना पीपल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर एज इज इक्वल टू 1, तो ये खाली क्वेरी सेट दे दिया, मतलब कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं एग्जिस्ट करता जिनकी एज 1 है। अगर मैं यहाँ पे 19 कर दूं तो सॉरी यहाँ पे गेट करना था ना मुझको, इसका मतलब पीपल मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब गेट रिकॉर्ड आपका फेल हो जाता है। जब नहीं मिलता है तो भी फेल हो जाता है, अगर ज्यादा मिलता है तो भी फेल हो जाता है। तो मतलब गेट वाला जो चीज है ये आपको बहुत हिसाब से यूज करना पड़ेगा, या फिर इसको ट्राई कैच एक्सेप्ट में लगाना पड़ेगा, तभी लेकर के आएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक चीज होती है इसके अंदर गेट और क्रिएट। तो ऐसा अगर देखो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये रिकॉर्ड होगा तो ले आएगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे, और ये हमेशा दो चीजें रिटर्न करता है, एक तो पहला ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है एंड दूसरा ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू का मैं डिफरेंस बताता हूँ। मैंने एक ऐसा रिकॉर्ड क्लिक करता हूँ जिसकी एज 1 हो एंड ऑल सेट ऑफ फील्ड्स में क्या पास करनी है, नेम। सो नेम में मैं पास कर देता हूँ अपना नेम अभिजीत, एंड अबाउट में लिख देता हूँ ABC एंड, और हमें यहाँ पे ईमेल पास करना था। सो ईमेल में पास करता हूँ a@a.com। अब ये क्या करेगा, क्या करेगा, अब इसका देखो यहाँ पे क्या, पहले तो ऑब्जेक्ट हम प्रिंट करते हैं तो हमें भाई वो ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो इसका मतलब ये ट्रू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ एंड अब इसको प्रिंट करता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो इसने ट्रू भेज दिया, दोबारा फॉल्स भेज रहा है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जब ये पर्टिकुलर चीज गेट और क्रिएट रिकॉर्ड क्रिएट करेगी तब ये ट्रू भेजेगी। मतलब हाँ हमने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, ये था नहीं आपके पास, गेट आपका फेल हो गया, हमने क्रिएट कर दिया है, तब आपको ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और जब ये क्रिएट ना करके गेट मतलब ले आएगी, हाँ ये क्रिएट नहीं किया है हमने, हम ले आए हैं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब ये जो गेट और क्रिएट है ये दो चीज रिटर्न करता है। पहली ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, दूसरा जो है वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बुलियन वैल्यू में अगर कोई उसने रिकॉर्ड क्रिएट किया होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया होगा, सिर्फ और सिर्फ गेट किया होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आपको गेट और क्रिएट का भी सिनेरियो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन टू लाइक this thing. This is what like limitation. Limitation is very important. Like suppose that अगर आपको कोई डेटा लिमिट करना हो तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ people dot objects dot all, तो अभी मैं अगर करता हूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इतने सारे आ गया। अब मुझे इन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को 5 तक लिमिट करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 लोग को लेकर के, ज्यादा मत लेकर के आओ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया 5 लोग। तो इसका मतलब मैं स्लाइसिंग यूज करके यहाँ पे इस तरीके से लिमिट को भी डेटा कर सकता हूँ। सो आई होप लाइक दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड फर्स्ट पार्ट के लिए बहुत है। नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखेंगे जैंगो के अंदर, एग्रीगेशन, एनोटेशन, ये सारी चीजें सीखेंगे एडवांस। एंड जैंगो के अंदर कैसे हम लाइक एंड और नॉट कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीजों को। एंड फिल्टर्स अभी हमने यूज करें, हमें डेटा को एक्सक्लूड करना होगा, देन व्हाट वी कैन यूज इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। So I hope this is it for the video, and before ending this video I want to give a very important information for you people. So basically Newton School के जो e-learning बैचेस हैं, जो फुल स्टैक डेवलपर के बैच हैं, वो जनवरी से फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड व्हाट्स न्यूटन स्कूल, आई वांट टू टेल यू, न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। एंड यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको फीस तब तक नहीं देनी है जब तक आपकी मिनिमम गारंटीड CTC 5 लाख से अबव का ना लग जाए। मतलब आपको तब तक कोई भी अमाउंट नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब, आपका CTC 5 लाख से अबव का ना लग जाए। मतलब आपको गारंटीड प्लेसमेंट मिलेगी यहाँ पे 5 लाख से अबव की, ठीक है। एंड आप डिस्क्रिप्शन में हमारे लाइक जा सकते हो, वहां पे आपको लाइक इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा एंड वहां पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो। एंड आफ्टर अप्लाई नाउ यू कैन लाइक आपको न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की एक कॉल बैक आएगी, दैट कैन हेल्प यू आउट। So meet you in the next video. I hope you have enjoyed the video. If you have enjoyed the video, please do share the video. Meet you in the next video in which we will explore more about Django ORM and we will write some advanced complex queries. So meet you in the next video.